एक ही है. Hello students, let's move on to the next part of the poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock, from the pen of Alfred Tennyson. I told you that Tennyson from the pen of T.S. Eliot. The Love Song of J. Alfred Prufrock from the pen of T.S. Eliot. I told you that Prufrock is a man of indecisions. He is a man who is mentally coward. He is an indecisive man. He is having no courage to propose to the lady he loves. The title of the poem is The Love Song of J. Alfred Prufrock. I told you at the outset that there is no love at all. J. Alfred Prufrock. That name is also hollow because J. Alfred Prufrock. Name sounds as if the person is a very dignified one or very royal one or very, what to say, energetic man. Whereas here we find that man is hollow. He is having no manhood left in him. He is just a bundle of pretensions. He is mentally coward. Simply can't make proposal to the lady he loves. So here see the text, line number 50. Up to 50 I had covered in my previous videos. I have measured out my life with coffee spoons. What does it mean? कि Prufrock admits that his life is full of trivialities. Coffee spoons का मतलब आप coffee spoons नहीं कहेंगे. Coffee spoons का मतलब है trivialities. कि उसकी जिंदगी जो है उसमें कुछ ऐसे बड़ा काम नहीं हुआ. छोटी छोटे काम है ना, छोटी छोटी चीजों से है. He has wasted a great deal of time in taking coffee. Here the triviality of modern city life is disclosed. Modern civilization includes a succession of tea parties, coffee sessions. क्या करते हैं लोग? सारा दिन रेस्टोरेंट में बैठे कॉफी पी ली, चाय पी ली, पार्टीज हो गई, कॉफी सेशंस हो गए, है ना? So this is what the modern young man, women, they do. So Prufrock's life is measured not in terms of actions or resolutions, but by a number of coffee spoons. कि कितनी बार उसने चम्मच घुमाए हैं कॉफी के मग में, है ना? यानी कि वो so to say कि भी कितनी कॉफीज पी हैं, कॉफी कितनी बार पी है, कॉफी कितनी बार पी है का मतलब क्या है कि he has wasted a lot of time in coffee sessions and parties. He has not done any creative thing, any action. His life is not having, his life cannot be measured in terms of actions or resolutions and all that. I know the voices dying with a dying form. Prufrock recognizes the voices of the ladies. He recognizes the voices of the ladies who were singing in the restaurant. I know the voices with a dying fall beneath the music from a farther room. He knows the voices of the ladies as they are coming from the another room. So how should I presume? So now the problem is that how should he presume? How should he start? How should he make a proposal to the lady he loves? This is something which is horrible. Prufrock cannot dare to speak out his mind. He doesn't know how to make the proposal
or to disclose his love to his lady. And I have known the eyes already, known them all. The eye that fix you in a formulated phrase. I have known the eyes already. The eyes that fix you in a formulated phrase. And when I am formulated, sprawling on a pin, and when I am pinned, wriggling on the wall. Prufrock knows the women in the room. He knows their likes and dislikes and their value system. है ना, देखो प्रूफ्रॉक को सब पता है कि उस कमरे में कौन कौन सी लेडीज बैठी हैं, उनके वैल्यू सिस्टम क्या हैं, उनकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है. तभी वो कह रहे हैं ना, आई हैव नोन द आईज ऑलरेडी. उसको पता है कि वो लेडीज उसको कैसे देखेंगी. आईज ऑलरेडी में क्या आ गया कि उनकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, उनकी वैल्यू सिस्टम्स क्या है. नोन देम ऑल, वो उन सबको जानता है. The eyes that fix you in a formulated phrase. He knows that they will look at him with the searching eyes, and he will not be able to stand there sharing, scaring. Eyes that fix you in a formulated phrase. उसको पता है कि जब वो उसको देखेंगी, उसको घूरेंगी इस तरह से कि वो वहीं पे स्टक हो जाएगा, है ना. कि जब वो उसको देखेंगी सर्चिंग आईज से, तो विल नॉट बी एबल टू स्टैंड देयर स्टेयरिंग. एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, है ना. और क्या होगा, द सिचुएशन विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ ए पुअर वॉर्म फिक्स्ड ऑन अ विद द पिन. तो उस टाइम पे उसकी स्थिति कैसी होगी, उस कीड़े जैसी होगी जिसको पिन से एक दीवार पे फिक्स कर दिया गया. एंड व्हेन आई एम पिन रिगलिंग ऑन द वॉल, और उसको क्या, उसकी स्थिति कैसे होगी कि जैसे वो कीड़ा जो है जिसको दीवार पे पिन के साथ फिक्स कर दिया, वो स्ट्रगल कर रहा होगा वहां से बचने के लिए, हेल्पलेसली टू मूव आउट फ्रॉम देयर. एज सच same will be the position of him. So as such he has no mind to face the ladies. ठीक है, फिर से देखो. And I have known the eyes already, known them all. Prufrock knows कि he knows all the ladies, he knows eyes already. I have known the eyes already का मतलब क्या हुआ कि he knows their likes, their dislikes, their value system. Known them all. He knows each and everything about all the ladies whosoever are there in the room. The eyes that fix you in a formulated phrase. कि eyes मतलब क्या है, जो eyes तुम्हें फिक्स कर देंगी, मतलब कि वो जिस तरह से तुम्हें घूरेंगी, जिस तरह से तुम्हें स्टेयर करेंगी, तो तुम वहां पे स्टक हो जाओगे. फॉर्मुलेटेड फ्रेज का मतलब क्या हो कि तुम वहां से मूव नहीं कर सकोगे. एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, तो वो कैसी स्थिति हो जाएगी उसकी. प्रूफ्रॉक ऐसा इमेजिन कर रहा है कि उसकी स्थिति कैसे हो जाएगी, जैसे किसी कीड़े को दीवार पे आप पिन के साथ फिक्स कर देते हो. एंड व्हेन आई एम पिन्ड रिगलिंग ऑन द वॉल, और फिर उसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, उसकी वॉर्म की तरह से जो स्ट्रगल कर रहा है हेल्पलेसली एस्केप करने के लिए. इन शॉर्ट, द मीनिंग इज दैट Prufrock has no courage to face the ladies in the room. Then how should I begin? है ना, प्रॉब्लम तो घूम के वही आ गई कि उसको अपनी बात को शुरू कैसे करें, वो कैसे कहे, है ना. हाउ शुड ही मेक प्रपोजल टू द लेडी. Prufrock cannot dare to speak out his mind. He doesn't know how to make the proposal or to disclose his love to his lady. To spit out all the butt ends of my days and ways. Prufrock's life is made up of trivialities which make up his days and ways. उसने अपनी डेज एंड वेज का मतलब क्या हो गया कि उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा सा नहीं किया, कुछ भी रेजोल्यूशन लेने की उसमें एबिलिटी नहीं है,
है ना, he has not done any action anything जिसका वो बता सके कि मैं ये काम करता हूँ या मैं ऐसा करता हूँ. It is not. So he has just wasted his time in going to the restaurants and having coffee sessions and all that. बट एंड समझ गए ना, बट एंड्स क्या होता है, जैसे वो सिगरेट पीते हैं तो वो पीछे वाला हिस्सा फेंक देते हैं ना, लास्ट वाला, दैट इज कॉल्ड बट एंड्स. सो ही हैज जस्ट वेस्टेड हिज टाइम. He doesn't know how to presume. How should I presume? He doesn't know how to make proposal to the lady he loves. And I have known the arms already, known them all. He knows the arms. He refers to the arms of the women. मेरे को उनका पता है. Known them all. अच्छे से जानता है उन सबको. He doesn't know how to make his proposal to those ladies. Arms that are braceleted and white and bare, but in the lamp light downed with light brown hair. है ना, मतलब उनको उसको पता है, उन लेडीज को अच्छे से जानता है कि भी कैसे उन्होंने बाजू में ब्रेसलेट पहने होते हैं, कैसे उनकी बाजू बिल्कुल वाइट कॉम्प्लेक्शन लिए होती है, बेयर बेयर मतलब विदाउट स्लीव पहना होता है और व्हाटएवर लाइक दैट, और उनकी बाजू कितनी वाइट और कितनी ब्यूटीफुल लगती हैं, और लैंप लाइट में उनकी बाजू पे क्या कैसे वो ब्राउन हेयर जो है वो दिखाई देते हैं. Is it perfume from a dress that makes me so digress? He doesn't know what is taking place here. Is it perfume from a dress? You see, I should have told you again at the outset that this is a dramatic monologue. This poem is a dramatic monologue. Monologue मतलब speech by one person. You see, पूरी पोएम जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में है. आई करके बात हो रही है, यानी कि प्रूफ खुद तुम्हारे साथ बात कर रहा है कि ऐसा है, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं. यानी कि ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स का अप एंड डाउन हो रहा है ना, तभी उसको ड्रामेटिक कहते हैं. ड्रामेटिकली अ पर्सन इज गिविंग, इज स्पीकिंग. सो ड्रामेटिकली अगर कोई पर्सन, अकेला पर्सन बोल रहा है, तभी तो उसको मोनोलॉग कह रहे हैं, क्योंकि एक ही पर्सन बोल रहा है. तो ड्रामेटिकली वो जना आपके साथ बात कर रहा है. तो ड्रामेटिक का मतलब है कि हमें उसकी माइंड में क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी थॉट्स क्या है, वो हमको पता चल रहा है. इज इट परफ्यूम फ्रॉम ए ड्रेस दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस. कहता है कि कहीं ये किसी लेडी की ड्रेस से परफ्यूम है जिसकी वजह से मैं डाइग्रेस हो रहा हूँ. डाइग्रेस मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, कि मैं अपने पर्पस से परे हो रहा हूँ. आर्म्स दैट लाई अलोंग ए टेबल और रैप अबाउट ए शॉल, है ना, कि भैया मतलब ये आर्म्स जो हैं वो लेडी ने अपनी टेबल के ऊपर रखी हुई है, या अपनी बाजू पे उसने शॉल लपेटी हुई है. ही नोज ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे वो लेडीज बैठी है ना. उसने बाजू ऐसे अपन बेड टेबल पे रख के नहीं बैठते कॉफी पी रहे हैं तो, या शॉल लगाई हुई है, शॉल पहनी हुई है ना, उसको सब पता है. बस एक ही चीज नहीं समझ में आ रही. एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, कि क्या मैं तब वो करूं, कि तब शुरू करूं अपनी बात, तब प्रिज्यूम करूं. मेन प्रॉब्लम विद प्यूफॉक इज हाउ टू स्टार्ट हिज कन्वर्सेशन विद द लेडी एंड मेक हर नो हिज प्रपोजल ऑफ. उसके मेन प्रॉब्लम ये है कि उस लेडी को कैसे बताए भाई, हाउ शुड आई बिगिन, कैसे शुरू करूं मैं अपनी बात, और कैसे उसको अपने प्यार के बारे में बताऊं, और कैसे मैं उसको बताऊं कि आई एम इंटरेस्टेड इन लव विद हर. Shall I say, I have gone at dusk through narrow streets and watched the smoke that rises from the pipes of lonely man in shirt sleeves leaning out of windows. फिर देखो डैश 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 क्या दिखा रहा है कि मेंटल इंडिसिसिव है.
कि भी कैसे बात शुरू करूं। Prufrock wishes to introduce the subject of his love to his lady in a suitable manner. उसको लगता है मैं एक सुटेबल तरीके से अपनी बात को अपनी लेडी लव को बताऊं। तो क्या कह रहा है, उसको लगता है कि शायद मैं अपनी लॉनलीनेस के बारे में बात करना शुरू करूं। तो शैल आई से आई हैव गोन एट डस्क थ्रू नैरो स्ट्रीट्स। डस्क क्या होता है, डस्क मतलब इवनिंग टाइम, जब रात होने वाली है, वो वाला पर्टिकुलर टाइम, इवनिंग और नाइट के बीच का, कि डस्क टाइम पे जब मैं गलियों में से जा रहा था, एंड वॉज द स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम द पाइप्स। पाइप्स कौन सी, चिमनी पाइप से मैंने स्मोक को देखा, कैसे स्मोक निकल रहा है, ऑफ लोनली मैन इन शर्ट स्लीव लीनिंग आउट ऑफ विंडोज, है ना। Prufrock wishes to tell his lady that he has seen lonely men leaning out of the windows of their houses and smoking their pipes in the evening ये भी हो सकता है ना। कि Prufrock क्या कहना चाह रहा है कि डस्ट टाइम पे वो जैसे स्ट्रीट्स में से जा रहा था, तो उसने क्या देखा कि जो सिंगल मैन है, लोनली मैन मतलब बैचुलर जो है ना, वो कैसे लॉनली फील करते हैं, और कैसे वो लीनिंग आउट ऑफ विंडोज, खिड़कीज में से झांक के वो देख रहे हैं, है ना। और उनकी पाइप से, पाइप मतलब उनकी सिगरेट से वो धुआं निकल रहा है। तो ही वॉन्ट्स टू बिगिन हिज कन्वर्सेशन, he wants to begin his conversation by talking about his loneliness. I have been a pair of ragged claws scuttling across the floor of silent seas. Prufrock does not like to take a decision. He wants to delay and to postpone his declaration. He wishes to be some sea fish. देखो silent ragged claws scuttling across the floors of silent sea. He wishes to be some sea fish, a crab who runs quickly across the seabed with its rough claws, fearing some danger. तो भाई प्यूफ्रॉक अपने आप को क्या इमेजिन कर रहा है, जैसे कोई शिप होती है, जैसे कोई फिश है जो डर के मारे कि भी ऊपर सरफेस पे कोई डेंजर ना हो, फटाफट सरफेस को क्रॉस कर जाती है अपने रफ रैग्ड क्लॉज से, अपने रफ से पंजों से। तो अगेन जब टाइम आता है, पहले वो सोच रहा है कि मैं अपनी लॉनलीनेस के बारे में बात करते हुए शुरू करूं, और फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं चलो भागो भाई, तो अभी टाइम नहीं आया। He postpones the idea of making love, making proposal of his love to his lady, है ना। So I hope you understand what I have been talking about here. Next part we will do in the next session. Thank you.